కదులుదాము రండి మనం క్రైస్తవ పార్టీకై సామాజిక రాజకీయ చైతన్యముకై కదులుదాము రండి మనం క్రైస్తవ పార్టీకై సామాజిక రాజకీయ చైతన్యముకై ఇప్పుడు మాస్టర్ అబ్రహాం గారిని తమ సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా స్వాగతిస్తున్నారు. మాస్టర్ అబ్రహాం గారు, ఓసారి ఉత్సాహవంతమైనటువంటి వాతావరణంలో వర్ధిల్లాలి ఇండియన్ క్రిస్టియన్ సెక్యులర్ పార్టీ. థ్యాంక్ గాడ్ టుడే ఈజ్ ఫ్రైడే. థ్యాంక్ గాడ్ టుడే ఈజ్ ఫ్రైడే. ఈరోజు శుక్రవారం, అందుకే ప్రభువుకి వందనాలు. 2014వ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి 21వ శుక్రవారం. వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ ఫ్రైడే! వాట్ ఎ హిస్టారికల్ ఫ్రైడే! వాట్ ఎ హోలీ ఫ్రైడే! ఎ హిస్టారికల్ ఫ్రైడే! పెద్దలారా, చిన్నలారా, నవోదయం, శుభోదయం, భాగ్యోదయం, ప్రభువుకు నచ్చేటువంటి మాటలు. ఈ కుడి ప్రక్కన ఉదయ్ కుమార్ అధ్యక్షతన ప్రభువుకి ఇష్టమైన పేరు దేవప్రియం. ఈ ప్రక్కన కుడి ఎడమలుగా ఉండి ఇండియన్ క్రిస్టియన్ సెక్యులర్ పార్టీ ఆవిర్భావం. ఓ చారిత్రాత్మకమైన సంఘటన. అందరూ నాతో చెప్పాలి ఇప్పుడు. ఇండియన్ క్రిస్టియన్ సెక్యులర్ పార్టీ. అందరూ 4 ఏళ్ళు ఇలా చూపించాలి. మన ఇండ్లకు ఎవరు కనపడినా ఇదే, ఇలాగే 4 పదాల నవ్యమైన పార్టీ. ప్రభువు మనకిచ్చిన భవ్యమైన పార్టీ. నవ్యమైన పార్టీ, భవ్యమైన పార్టీ. ఎంతో మంది పెద్దలు, ఇంటికొక్కరు, వీధికిద్దరు, పల్లెకు 10 మంది, పట్టణానికి 10 మంది ఈ సందేశాన్ని పట్టుకెళ్తే ICSP పార్టీ కోసం ప్రాణాలిస్తే ఈ పెద్దలు చెప్పే మాటలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. జయ భేరి ఇండియన్ క్రిస్టియన్ రాజకీయ భేరి. జయ భేరి. ఈ పార్టీని పచ్చని పార్టీ చేస్తామని, నవ్యమైన భవ్యమైన పార్టీని చేస్తామని 2 చేతులు ఒకసారి పైకిద్దాం అందరూ. నిజాం కాలేజీ గ్రౌండ్స్ ఏ హిస్టారికల్ గ్రౌండ్. అంతర్జాతీయ వేదికలు, జాతీయ సదస్సులు, రాష్ట్రీయ సదస్సులు, ఎన్నో 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 చారిత్రాత్మకమైన సదస్సులు జరిగిన ఈ స్థలంలో నుంచి ఇలాగే వెళదాం ఇంటికి. ఈ సందేశాన్ని మోసుకెళ్దాం. ఇప్పుడు చెప్పండి నాతో. ICSP. ఇప్పుడు చెప్పండి అందరూ. ICSP. చాలా సులువుగా పెద్దలు భలే ఎన్నుకున్నారు. నేను ఇందాకటి నుంచి ఆలోచిస్తున్నా. ఇది కేవలం ఇండియన్ క్రిస్టియన్ సెక్యులర్ పార్టీ అనే మాటతో బదులు నేను ఇంకొక అర్థం చెప్తున్నా. దానికి తోడు చెప్పండి అందరూ ఒకసారి.
ఐసీ అంటే మీ అందరికి తెలుసు, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇంగ్లీషులో మేధావులు. నేను చూస్తున్నాను అని అర్థం. ఐసీ. ఎస్పీ అంటే ఏ స్పెషల్ పవర్, నాట్ అన్ ఆర్డినరీ పవర్, ఏ స్పెషల్ పవర్. ఒక్కసారి 72 ఏళ్ళ యువకుణ్ణి ఐసీ ఎస్పీ మీలో ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా నన్ను చూస్తే ఇదే డ్రెస్లో ఉంటా. నాకు చెప్పాల్సింది గుడ్ మార్నింగ్ కాదు, నన్ను అడగవలసింది బాగున్నారని కాదు. 4 ఏళ్ళు చూపించి నన్ను పలకరించండి. ఐసీ ఎస్పీ, ఇండియన్ క్రిస్టియన్ సెక్యులర్ పార్టీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇలాంటి ఇంకా అద్భుతమైనటువంటి చాలా సందేశాలు మన ముందుకు రాబోతున్నాయి. నౌ వి రిక్వెస్ట్ సెక్రటరీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియన్ క్రిస్టియన్ సెక్యులర్ పార్టీ, పెద్దలు గౌరవనీయులు, ఈ వ్యవస్థకు కార్యదర్శి అయినటువంటి మాన్యులని ఇప్పుడు మనం వినబోతున్నాం. మీరందరూ కూడా మీ ప్లేసుల్లో కూర్చోవలసిందిగా కోరుతూ, ఆరాధన ఛానల్ ద్వారా అనునిత్యం మనందరి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్నటువంటి పెద్దలు, చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఆరాధన టీవీ ఛానల్, దాంతోపాటు సెక్రటరీ జనరల్ అయినటువంటి పాల్ దేవప్రియం పుల్లా గారిని మాట్లాడవలసిందిగా సవినయంగా మీరందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి సార్ని ఆహ్వానించాలి. వెల్కమ్ సార్. దయచేసి క్షమించండి, నేను తర్వాత మాట్లాడతాను. ఎందుకంటే we have 2 distinguished guests who have come all the way from Delhi నుండి వచ్చారు. One of the tallest Dalit Muslim leader, Ali Anwar Ansari garu. He has come all the way from Delhi to support us. He has come to encourage us. He has come to give blessings to us. I thank Anwar Saab for taking time and coming to Hyderabad. You know, the power of Muslims, Christians, backward classes, Dalits, tribals. If we all unite together, nobody can overtake us, take it from us. I am sure we all will work together. In fact, Owaisi Saab also was supposed to be here. Because of the last day of Parliament, he could not come. And we have Mayor Saab also with us. After Anwar Saab, we have BAMSEF President, Vaman Meshram Garu. He also has to take a flight. We will hear first Anwar Saab, and then we will hear Meshram Saab, and then we will hear Mayor Saab, and then I will speak. Now I request our honorable chief guest, Ali Anwar Ansari Saab, Rajya Sabha member, one of the tallest Dalit Muslim leader. We are all fighting together to get the rights for Dalit Muslims and Dalit Christians. So I would request over to Anwar Saab, and I would request you to please speak to our gathering, sir. इंडियन क्रिश्चियन सेकुलर पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब उदय कुमार साहब, इस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जनाब पाल देवप्रियम साहब, के हैदराबाद नगर निगम के मेयर जनाब माजिद हुसैन साहब, और देश ही नहीं दुनिया भर में दलितों की, पिछड़े लोगों की आवाज और उनके दानिश्वर इंटेलेक्चुअल जनाब प्रोफेसर कांचा इलैया साहब, BAMSEF के प्रेसिडेंट जनाब बामन मेश्राम साहब, विशप मार्टिन साहब, आदर फ्रैंकलिन साहब, दानम साहब IAS, और डैश पर यहाँ मौजूद तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी के रिलीजियस लीडर और दूसरे ऑनरेबल ऑफिस बियरर ऑफ दिस न्यू पार्टी और दूसरे ऑनरेबल लोग, और इस सूबे से, इस स्टेट से, मुख्तलिफ हिस्सों से आए भाइयों और बहनों, सहोदरा सहोदरी, आज पार्लियामेंट का आखिरी दिन है। मैंने सोचा पार्लियामेंट खत्म हो रहा है और हैदराबाद के ऐतिहासिक शहर में एक नई पार्टी का, क्रिश्चियन सेकुलर पार्टी का उदय हो रहा है।
पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को आज हमने छोड़ा और आपके यहाँ आया। भाइयों और बहनों, कल रात बीइंग ए पार्लियामेंट मेंबर हम लोगों ने इस मुल्क के 29 स्टेट को जन्म दिया है। 8-9 घंटे लगे और जन्म देना कितना मुश्किल काम होता है। लेबर पेन कहते हैं, जच्चा बच्चा के जान को भी खतरा होता है। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ठीक है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट एक चीज और है इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर कि दलित मुसलमान, दलित ईसाइयों के साथ रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मजहब की बुनियाद पर भेदभाव हो रहा है। इसलिए कि हम मुसलमान दलित हैं, इसलिए कि हम ईसाई दलित हैं। काश हमारा भी कोई आदमी होता, कुछ लोग होते जो इस सवाल पर सरकार को मजबूर करते कि तुम्ही ने रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाया, उसका रिकमेंडेशन आ गया है कि मुसलमानों में भी दलित हैं, ईसाइयों में भी दलित हैं, उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, ये फौरन खत्म होना चाहिए। संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 341 पर 1950 में एक पारा 3 जोड़ करके रिलीजियस बैन लगा दिया गया, उसको खत्म करने का। इसीलिए आज ये शायद पार्टी बनानी पड़ रही है। अगर यूपीए सरकार ने तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा दोगे। 1950 में तुम ही थे और तुमने, बाबा साहब ने नहीं वो संविधान बनाया था, तुमने बाद में 1950 में उसमें मजहबी पाबंदी लगा दी, रिलीजियस बैन लगा दिया। अगर उसको दूर कर दिया होता तो शायद आज ये पार्टी नहीं बनानी पड़ती। निराश हो गए लोग, अब कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली में हमारे धर्म गुरुओं पर लाठी चार्ज हुआ, हम लोगों ने वहां एक साथ दलित मुस्लिम, दलित ईसाई, आज ही के दिन, जुम्मे के दिन वहां नमाज पढ़ी, इनको कहा कि भगवान इनको, खुदा इनको बुद्धि दे और हमारा ये मांग पूरा करे। नहीं पूरा किया। धरना, प्रदर्शन, रैली, कोई भी पार्लियामेंट का सेशन ऐसा नहीं गया जब हम लोगों ने मिल करके, दलित मुसलमान, दलित ईसाइयों ने मिल करके वहां रैली नहीं निकाली, मुजाहरा नहीं किया। पार्लियामेंट में हम लोगों ने सवाल उठाया, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हम लोगों का नुमाइंदा कोई नहीं। हमको एक बार पार्लियामेंट में कहना पड़ा कि हमारी आवाज तो न कारखाने में तूती की आवाज बन के रह जाती है। हम ऐवान में, असेंबली में, पार्लियामेंट में अकेले हैं, लेकिन हम आवाम में अकेले नहीं हैं, हम पब्लिक में अकेले नहीं हैं। हमारी आबादी है और डेमोक्रेसी चलती है आबादी से, और हमारी बात में दम है, हमारी बात लॉजिकल है। शायद यही दुनिया का दस्तूर है। सीधा उंगली घी नहीं निकलता है, डालडा के टीन में छेद करना पड़ता है और उंगली थोड़ा टेढ़ी करनी पड़ती है। तो टेढ़ा किया है, इसीलिए पार्लियामेंट को छोड़ करके आज की कार्रवाई को मैं आया हूं। आपको मुबारकबाद देता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं। आपने एक जोखिम का काम लिया है। ये पार्टी बनाना बड़ा जोखिम का काम है, बड़ा रिस्की है। अपना रिसोर्सेज होगा, अपने वोटर होंगे, अपना लीडरशिप होगा, तभी आपकी पॉलिटिक्स चलेगी, तभी आपकी मांग सुनी जाएगी। ऐसे जमाना, ये बड़ा बेरहम है जमाना। अब देख लीजिए, 119 पार्लियामेंट की सीट और 1050 असेंबली की सीट पूरे देश में रिजर्व है। दलित मुसलमान और दलित ईसाई उस पर खड़ा नहीं हो सकता है, नहीं खड़ा हो सकता है। ये आर्टिकल 341 से अगर रिलीजियस बैंड हटा तो दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों के लिए रास्ता खुलेगा। ये मुल्क तो इतना बेरहम है, यहां की जाति व्यवस्था इतनी बेरहम है कि अगर ये जो शेड्यूल कास्ट
कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट रिजर्व है, अगर रिजर्व नहीं होती तो हिंदू दलित एक भी जीत करके पार्लियामेंट में नहीं जाता। इसलिए भाइयों, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। हमारा जन्म ही इस आंदोलन से हुआ है, इस मूवमेंट से हुआ है। और मैं जिस पार्टी में हूं, हमारे नेता नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर जब एमपी थे तो पार्लियामेंट में कहा था कि मजहब तब्दील करने से, रिलीजन चेंज करने से इंसान का सोशल स्टेटस नहीं बदल। हम ईसाई जरूर हैं हुए, हम मुसलमान जरूर हुए, लेकिन हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के बहुजन हैं, हम इस देश के अक्सरियत के लोग हैं। हम जिस दिन हमारे बीच से हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का जो बनावटी दीवार खड़ा किया है, जिस दिन उस हट जाएगा तो हमारा आदमी लाल किले पर झंडा फहराएगा। उधार के अपना लीडरशिप बिना पैदा किए नहीं बात बनती है। गैर परों से उड़ सकते हो, एक शेर पढ़ करके खत्म कहता हूं, गैर परों से उड़ सकते हो। कबूतर उड़ रहा है ना, गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वही उड़ेगा जिसके अपने पर होंगे, जिसके अपने पर होंगे। अंबर माने आकाश। और ये कबूतर जो उदय बाबू आपने उड़ाया है, इस कबूतर की एक शांति का प्रतीक तो है, अमन का प्रतीक तो है। इसकी ये एक और खूबी है, ऊंचाई पर उड़ते हुए वो एक बैल के खूर में, बैल के पैर में अगर एक सरसों का भी दाना होता है तो वो देख लेता है, इतनी उसकी आंख तेज होती है। हिंदुस्तान के दलितों की, हिंदुस्तान के पसमानदा की, ओबीसी की अब आंख इतनी तेज हो गई है कि हमारी हकमारी कहां हो रही है, कौन कर रहा है, इस बात को हम पहचान गए हैं। और जिस दिन पहचान जाएंगे उस दिन और उसके मुताबिक हम एक्ट करने लगेंगे, उस दिन हमको कोई रोकने वाली ताकत नहीं है। तो आपके हिम्मत की मैं दाद देता हूं, आपको मुबारकबाद देता हूं और इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much, Anwar Saab. It was such a ferocious, such an encouraging words. We need మనకు కూడా ఒక క్రైస్తవ ఎంపీ ఇట్లా మాట్లాడేవాడు కావాలా, అందుకే ఈ పార్టీ పెట్టినాం. Thank you very much, sir. Anwar Saab, we need a Dalit Christian who can speak like you in parliament. Thank you very much. And we thank you on behalf of the party for coming and encouraging and blessing this party. Thank you very much, sir. సమాజ స్థాపన సమాజైపోయింది. తుపాకీ తూటలు అధికార చట్టాలు, తుపాకీ తూటలు అధికార చట్టాలు సమాజ స్థాపనను నిర్మించలేవు. సమాజ స్థాపనను నిర్మించలేవు. తుపాకీ తూటలు అధికార చట్టాలు, తుపాకీ తూటలు అధికార చట్టాలు సమాజ స్థాపనను నిర్మించలేవు. సమాజ స్థాపనను నిర్మించలేవు. యేసుక్రీస్తు రక్తముతో ఉద్భవించే సోదరా, యేసుక్రీస్తు రక్తముతో ఉద్భవించే సోదరా, యేసుక్రీస్తు రక్తముతో ఉద్భవించే సోదరా, యేసుక్రీస్తు రక్తముతో ఉద్భవించే సోదరా. సమాజ స్థాపన సామ్యవాద భావన, 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 సమాజ స్థాపన సామ్యవాద భావన. बोलो स्वतंत्र भारत की, बोलो स्वतंत्र भारत की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बोलो स्वतंत्र भारत की, हालेलुया. Now we have Mr. Vaman Meshram, Backward and Minorities Communities Employees Federation President and founder of
Bahujan Mukti Party. He's got a membership of 10 lakhs of Muslims, backward classes, scheduled castes, 10 lakh employees he's representing from all over the country. आप लोगों के द्वारा आज इंडियन क्रिश्चियन सेकुलर पार्टी का जन्म दिया गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापन देता हूं कि ये एक सबसे बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया। आज़ादी के 67 साल से क्रिश्चियन लोग एक पार्टी विशेष को, जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहता, उसको आप लोग समर्थन करते आए हैं और 67 साल में से लगभग 57 ईयर तक आप लोगों के समर्थन से उस पार्टी ने देश पर राज किया, आज भी कर रही है। मगर आप लोगों की समस्याओं का उन्होंने समाधान नहीं किया। इतने देर से आप लोगों ने उनका समर्थन किया, मगर उन लोगों ने आप लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया। इतने देर के बाद आपको एहसास हुआ। बहुत खुशी की बात है, चाहे देर से ही क्यों न हो, मगर आप लोगों को धोखाधड़ी का एहसास हुआ। मुझे बड़ी खुशी है कि देर से ही सही, मगर धोखाधड़ी का आप लोगों को एहसास हुआ और आप लोगों ने अपने अधिकार, सभी प्रकार के अधिकार हासिल करने के लिए अपने बलबूते पर अपने संगठन का निर्माण किया और अपने अधिकार हासिल करने के लिए प्रयास शुरू किया। दूसरी और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, उसी तरह से जिस तरह से क्रिश्चियनों में शेड्यूल कास्ट से धर्म परिवर्तन किए हुए जो लोग हैं, उन लोगों के अधिकार धर्म के आधार पर, संविधान के आर्टिकल 14 में धर्म के आधार पर भेदभाव करने के लिए पाबंदी है और धर्म के आधार पर भेदभाव करने की पाबंदी होने के बावजूद भी शेड्यूल कास्ट से धर्म परिवर्तन किए हुए जो लोग हैं, उन लोगों को उनके इक्वल राइट देने की कोशिश नहीं हुई, बल्कि उनके साथ आज तक 63 ईयर हो गए संविधान लागू होकर, फिर भी वो अधिकार नहीं दिए गए। उसी तरह से जो शेड्यूल कास्ट के लोग मुसलमान हो गए, उन लोगों को भी ये अधिकार नहीं दिए गए। जिस तरह से क्रिश्चियनों ने पिछले 67 ईयर से एक पार्टी विशेष को साथ दिया, उसी तरह से मुसलमानों ने भी पार्टी विशेष को साथ दिया और उनके सपोर्ट के बगैर, मुसलमानों के सपोर्ट के बगैर दिल्ली में कोई राजनीतिक पार्टी जिनकी अकेले 15% संख्या हो, कोई भी पार्टी दिल्ली में राज नहीं कर सकती। मुसलमानों के सपोर्ट के आधार पर दिल्ली में वो पार्टी राज करती रही, आज भी कर रही है और उनके साथ भी इक्वली जैसा क्रिश्चियनों के साथ धोखा हुआ, वैसा मुसलमानों के साथ भी, खास तौर पर जो शेड्यूल कास्ट से धर्म परिवर्तित है, उन लोगों के साथ भी धोखा हुआ। और मैं ऐसा मानता हूं, क्रिश्चियनों ने और मुसलमानों ने जो शेड्यूल कास्ट से कन्वर्टेड हैं, उन्होंने आज तक जालिमों का साथ दिया। और अगर जालिमों का साथ दिया तो जालिम का चरित्र होता है कि वो अन्याय करे। ये जालिम का चरित्र होता है कि वो अन्याय करे और वो करते रहे आज तक। अभी बहुत बड़े पैमाने पर सारे देश भर में ये एहसास बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अन्याय के विरोध में लोग उठकर खड़े होना चाहते हैं
और शेड्यूल कास्ट से क्रिश्चियन हुए, शेड्यूल कास्ट से मुस्लिम हुए, ऐसे लोग भी उठकर खड़े होना चाहते हैं। ये बात बहुत अच्छी है, बहुत इंकरेजिंग है, बहुत हिम्मत वाली बात है, खुशी की बात है। और आप लोग अपने बलबूते पर खड़े होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए मैं व्यक्तिशः और ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से आपके इस कोशिश को सलाम करता हूं। आपके इस कोशिश का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इस कार्यक्रम के लिए बुलाया। मैं आप लोगों को इस कार्य को, इस कारवां को आगे बढ़ाने में भविष्य में हम लोग मिलजुल कर सारे देश भर में काम करेंगे और जो मजलूम हैं, जिनको अधिकारों से वंचित किया गया है, उन लोगों को अधिकार हासिल करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने संगठन के तरफ से जो कन्वर्टेड शेड्यूल कास्ट क्रिश्चियन हैं और जो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, उन लोगों को संवैधानिक अधिकार जो शेड्यूल कास्ट के हैं वो अधिकार मिलने चाहिए। इसके लिए मैं तायद करता हूँ, इसके लिए मैं समर्थन करता हूँ। आप लोगों को एक और थोड़ा सावधानी बरतने के लिए कहता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि कार्य को इस तरह से अंजाम दिया जाए जिससे बहुसंख्य लोगों को जो वो कहते रहते हैं उनको हमारे धर्म के आधार पर, धर्म के बुनियाद पर ध्रुवीकरण करने का मौका आंध्र प्रदेश में नहीं मिलना चाहिए। यदि ऐसा होता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ऐसा हुआ, मध्य भारत में भी ऐसा हुआ और सारे भारत में धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करने का एक धर्म के विरोध में प्रतिक्रिया निर्माण करके ऐसा प्रयास हो रहा है। आप लोगों को इसके बारे में सतर्क रहना होगा। ये अनुरोध करते हुए अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you very much, sir. सामाजिक राजकीय